So now, as I just shown it to you, one of the very important book on the poetry by national level poet Ramdhari Singh Dinkar. So this entire poetry has a variation in terms of the performances. There is a performance by Karan, there is a performance by Krishna, there is a performance by Duryodhan, there is a performance by other people also. So you can choose one page out of it after going through the entire poetry. Choose whatever you would like to perform. But then if I need to choose, I would choose Krishna's statement. When Duryodhan says, give the order to his army, and he says ki make the Krishna as, bandi bana lijiye usko, arrest him. At that point, when the Krishna show his Brahma Roop, that is a performance which is amazing. So this guy who was performing here is good. It's good. But as an actor, it could have been much more better. That's one thing. So don't get hypnotized whatever he has said. I just wanted to give you an example of a performance by someone who has given it. So I like this way he says it and the way he takes the pauses. I would say out of 10, his performance was up to 6 marks out of 10. I'm a little miser in my marking, but let's say 7. But there is a 3 more need to be acquired. There's something which is lacking right now. And what is these 3 which can give you a 10 marks out of 10 is something else which is required, which you need to understand and should be able to perform in your monologue, which is for which you are given the 10 minutes time. 10 minutes is too long a time to show your capability for one performance. So that's it. So I will take up the questions now, and then we would move further. Just a moment. Let me just finish this and poll first of all. And now we would go a little bit here. Question one by one, we will take it up. And let's see how Kunal Sanigrahi. Yes, sir. Good evening, sir. So I wanted to ask that you said earlier that you wanted to elaborate on a question that says how smell triggers our memory. See, that's So a how can question connected with the acting. So maybe a gentleman who's coming tomorrow, he will take it up over there. That's one of the acting technique under which it falls over there. So he would discuss that. So wait kindly for that. Okay. Okay, sir. Sure. Thank you, sir. Next. Suraj. Hello, sir. Yeah. Sir, I had seen a question in FTI previous year papers that write your own views about a film which you like. So when we are answering that question, so this is essential to write about the cast and crew. Otherwise, we should write our own views only. देखिए कास्ट एंड क्रू की बात नहीं कर रहे हैं वो लोग बात कर रहे हैं आपने एक फिल्म देखा, आपको वो फिल्म में ऐसी क्या बात नजर आई जिसको सिनेमा बोलते हैं. Why we call this film as a cinema? What is cinematic about it? समझे कि नहीं? अब वो कुछ भी हो सकता है. बट सर अगर हम लोग जैसे क्वेश्चंस में सिनेमेटोग्राफर का नाम किसने किया है या एडिटर का नाम, बातें हैं उस बातों को करने का कोई मतलब नहीं. इन्फॉर्मेशन नहीं देनी वहां पर, वो तो पता ही है सबको. ओके. नो इन्फॉर्मेशन. फिल्म किसने है, कहानी क्या है फिल्म की, वो सब बकवास नहीं करनी. आप मुझे वो चीज बताइए जो ब्रह्म ज्ञान की बात है उस फिल्म के अंदर. ब्रह्म ज्ञान की बात करिए मुझसे. बकवास मत करिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान की बात करिए. ब्रह्म ज्ञान क्या है उस फिल्म के अंदर, ये बताइए. ओके सर. जैसे मैं सर एक और क्वेश्चन. बोलिए. सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम हिंदी में लिखते हैं और बीच में कभी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, वो तो चल जाएगा. कोई दिक्कत नहीं इसमें. कोई दिक्कत. ठीक है सर. थैंक यू सर. अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. ब्रह्म ज्ञान की बात हिंदी फिल्मों में कम होती है, बट कभी कभी हो जाती है, गलतियां हो जाती है लोगों से, कभी कभी हो जाता है कुछ. बहुत साल पहले की बात है ये. सागर नाम की फिल्म मैंने सिनेमा हॉल पे देखी थी. उसमें एक सीन है, डिम्पल कपाडिया और ये जो एक्टर है अपना क्या नाम, कमल हसन. तो डिम्पल और कमल हसन के बीच में दोस्ती है, बट कोई लव अफेयर नहीं. डिम्पल की तरफ से लव अफेयर नहीं है, कमल की तरफ से लव अफेयर. तो जब डिम्पल को पता लगता है कि ही इज इन लव विद मी, सो शी गोज टू कन्फ्रंट हिम, एंड देयर इज अ शॉट ओवर देयर इन विच
Kamal Hassan is looking into the camera. Dimple is behind him, and both are looking into the camera. And we, as an audience, can see both of their faces, and they can't see each other's faces. So she is asking from behind that I heard that you are in love with me or something like that. But then there's a dialogue, and then it brings tear in his eyes, and he do not wanted to show the tear in his eyes, and he do not wanted to move his hand also, because the moment if he moves his hand to the eyes or something, she would come to know. So what he does is that in front of him, director has planned the shot in such a way that in front of him there's a big drum of water, and he picks up the water from his hand and he throws first on his face, so that the entire tears get merged with the water, and then he throws the water on the Dimple, because he's a very chirpy character. So Dimple never comes to know he had a tear in his eyes. So that's a brilliant shot for me. Okay. So something which is appealing, something very interesting. There are many things in the film which are very symbolic sometimes. I have done the film analysis of 2 films. I think I have posted that at the time of MCQ people. Most of you are also MCQ people. So start reading those 2 films and watch those 2 films, which I have discussed in the film appreciation of the 2 particular things loaded on the website of our Craft Film School. And that's what you need to write about. I have written long things over there about entire film, because that film has too many things to talk about. But if it is a 5-minute film, 5-mark question, 5 points, 1, 2, 3, 4, 5. If it is a 10 marks thing, 10 points from the particular film. But don't talk nonsense. Be very focused and be precise, and be. There's a term called laconic. Use less word to say more things. Okay, That's the formula. Don't write unnecessary. ओके सर एफटीआई के लिए बोलते हैं कि फिल्में देखना चाहिए, तो ये कितना जरूरी है कि हम बाहर की फिल्मों को देखें, जैसे अकीरा कुरोसावा है या फेडरिको फेलिनी को, क्योंकि वो फिल्में समझ नहीं आती ज्यादा, और जो हमारे यहाँ की हैं जैसे कि आप समझना नहीं चाहते। नहीं सर, उनको समझने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। कुछ चीज अपने आप चल के नहीं आती आपके पास, कुछ चीजों के लिए आपको चल के जाना पड़ता है। जैसे बोला जाता है कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, प्यासा कुएं के पास जाता है। तो ये जो फिल्में हैं जिसको हम वर्ल्ड सिनेमा बोलते हैं, जिनको क्लासिक्स बोला जाता है, जिसको कान, बर्लिन, वेनिस में गई हैं, इंटरनेशनली लोगों को पता है, उनको समझने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें समझने के लिए कुछ होता है। आपकी ट्रेनिंग हुई है यश चोपड़ा और सुभाष घई से। जी। जो ट्रेनिंग है वो यश चोपड़ा और सुभाष घई की ट्रेनिंग, और ये चीजें यश चोपड़ा और सुभाष घई से बाहर की रेंज की, समझा मेरी बात? जी। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस आपको पढ़नी पड़ेगी, रोक के फिल्म को 4 बार देखना पड़ेगा, तब जो है आपको कुछ बातें उसमें समझ आने लगेगी। जी, समझे कि नहीं? मेरा मानना है जो भी आदमी है, दाल रोटी खाता है, मनुष्य योनि में पैदा हुआ है, वो आदमी उन सब फिल्मों को समझ सकता है। तुम घास तो नहीं खाते, घास खाते हो क्या सर? लिस्ट मूवी का सर, जो आदमी घास नहीं खाता, दाल रोटी खाता है, वो उस फिल्म को समझ सकता है, बट समझने के लिए कोशिश करनी है, बिना कोशिश किए नहीं होने वाला। बट सर अपने यहाँ भी तो बहुत से ऐसे मतलब अच्छे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने बनाई है फिल्में, तो वही बहुत है, उनको देख लें। और देखो किसने मैंने मना किया कि उनको मत देखो? नहीं सर, हम देखो, मैंने बोला रे मत देखो, मैंने बोला घटक मत देखो, मैंने बोला अरविंदम मत देखो। बहुत लोग ऐसे, विशाल भारद्वाज बैठा हुआ है, विशाल भारद्वाज की हर फिल्म में कुछ ना कुछ समझने के लिए होता है। अब बात समझ रहे हैं जी? विशाल भारद्वाज की फिल्म में, हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको समझना पड़ता है। तो मैंने तो नहीं बोला कि इंडियन फिल्में मत देखो, बट ऐसे विशाल भारद्वाज जैसे लोग गिने चुने 5-6 ही होते हैं। भीड़ भड़का वही होता है, सुभाष घई एंड अदर्स। I'm not against them. They should exist. It's a democracy. Everybody has a right. किसी को लिट्टी चोखा पसंद है, किसी को बड़ा सांभर पसंद। यस सर, बात खत्म। सर वैसे फिल्मों का लिस्ट दे देते तो ज्यादा बेटर होता।
बहुत सिंपल सा है, मेरे किताब लिखी हुई है, उसी किताब का एक वर्जन है जो मैंने आपको बताया था कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्में होने से चालू हो जाओ 1961 से अब तक 5 फिल्में नॉमिनेट होती हैं, मल्टीप्लाई कर लो 50 साल के अंदर, पहले उनको देख लो। इंडिया के अंदर भी लिस्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि भाई मेरी 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 पसंद की कौन कौन सी। अब उसमें क्या है समझने के लिए होगा उसमें कुछ। मेरी हर फिल्म के जो अगर मुझे कोई फिल्म पसंद आती है वो वही पसंद आती है कि उसमें कुछ खोपड़ी खुजाने के लिए होना चाहिए। बिना खोपड़ी खुजाए अगर आप बाहर आ गए तो कोई मतलब नहीं। गाना ही सुन लो, रेडियो पे गाना सुन लो, गाना चल रहा है वहां पे, टीवी में देख लो कोई फिल्म, वीडियो में देख लो, सिनेमा हॉल में चल के गए आप, पॉपकॉर्न खरीदे, कॉफी पी, कुछ करा, तो कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से खोपड़ी को खुजाना पड़े थोड़ा सा कि ये क्या था, ये नहीं समझ आया। कुछ होना चाहिए ना, एक आदमी ने फिल्म बनाई और दूसरे आदमी को नहीं समझ आई, हिंदी की फिल्म थी और दूसरे हिंदी भाषी आदमी को समझ नहीं आई, तो क्या हुआ उसमें, कुछ ऐसा है, करेक्ट। तो इट चैलेंजेस योर सेंसेस, कुछ थोड़ा सा समझना पड़े, कुछ है चक्कर, गुगली है ये, सीधी सीधी बॉल नहीं जा रही है गुगली वाला खेल जो होता है उसमें मजा आता है, समझे आप। तो इंडियन फिल्में भी हैं जिसमें कुछ ऐसा है जिसको समझना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द सत्यजीत रे's फिल्म हैज समथिंग और अदर इन द फिल्म। पूरी फिल्म के अंदर 20 ऐसी चीजें होती हैं जो समझनी पड़ती हैं, कम से कम 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। मैंने कुछ ऐसी फिल्में भी देखी हैं रे की जिसमें 40 पॉइंट होते हैं, 20 सर पॉइंट। लिस्ट देते सर। लिस्ट सत्यजीत रे फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, आगे बढ़ो, पहले उनको निपटाओ। 1960 से सर। फर्स्ट फिल्म टू लास्ट फिल्म 30 के करीब फिल्में बनाई हैं उसने। विशाल भारद्वाज की सर। विशाल भारद्वाज ने बेटा 6 फिल्में बनाई हैं, मैं सत्यजीत रे की बात कर रहा हूं। सत्यजीत रे की 37 है शायद। हाँ जी, सत्यजीत रे की 37 है 37 है, बहुत टोटल। अच्छी बात है, रट के बैठे हुए लोग 37 है लोग। कितनी देखी है तुमने 37 में से? सर देखी तो 6-7 है। देखी तो बस, 2 देखना क्या, नहीं 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 सर, वो ये उतना ही काफी है। कौन चक्करों में पड़े देखे और फिर उसको समझे, अरे झंझट में कौन पड़े सर वही बार बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं उनको, इसलिए नहीं आगे बढ़ समझ रहे रहे हैं, हैं। बहुत अच्छी बात है, समझना चालू कर दिया, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, गुड लक। हाँ जी, नेक्स्ट पूर्णिका सत्यजीत की शर्मा। सारी फिल्में देखनी है सर। बेटा देख, अगर जिंदगी में पढ़ा लिखा समझदार आदमी बनना है, जिंदगी में कभी ऐसा कुछ करना है कि जिसकी वजह से लोग मेरे को भी मेरी फिल्म देखने के बाद भी बोल रहे हैं कि यार ये क्या था फिल्म में जो हमें समझ नहीं आया लोग देखो क्या है, फिल्म में 2 चीजें होती है, एक होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन, एक एप्रिसिएशन बाय मासेस। आर्ट और कॉमर्स दोनों चीजें होती है, कमर्शियल आर्ट जिसको बोला जाता है। तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए फिल्म में जो समझना आए और कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो एंटरटेनिंग हो। यूपी बिहार में तो सीट फाड़ देंगे लोग, अरे साला पैसा ले लिया है हमसे, धोखा दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो आप जो है, इट्स अ ब्लेंडिंग ऑफ बोथ एंटरटेनमेंट एंड सिनेमैटिक वैल्यू, दैट्स व्हाट आई नीड टू से। ओके, नेक्स्ट पूर्णिका शर्मा। शर्मा जी आप पास हैं, सो गए? बोलिए। सर आज का जो क्वेश्चन था उसमें माइक से रिलेटेड मुझे समझ नहीं आया, आपने मफलर की बात कर ली कि मफलर की बात की थी। क्या होता है कि माइक के ऊपर एक छोटा सा काले रंग का एक कुशन लगा होता है। सर वो तो समझ आ गया, बट बाकी माइक से रिलेटेड और क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? मैंने आपको जो बताए हैं माइक से रिलेटेड, एक तो लेवलिंग का बताया मैंने आपको कि जब आप लेवल दे रहे होते हैं माइक को, साउंड रिकॉर्डिस्ट को, अपना साउंड का परफॉर्मेंस से पहले वो लेवल आपको परफॉर्मेंस में भी मेंटेन करना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका जो वहां पर लगा होता है, वो जहां भी लगा होता है, तो उसको कहीं कपड़े से रगड़ रहा हो, कुछ ऐसा कपड़ा पहना हो आपने, शॉल वॉल इधर उधर हिलाया, पता लगा बच्चन ने कुछ उसमें वो इधर उधर कुछ रगड़ आ गई उसके अंदर, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि वो माइक्रोफोन को, जो उसका टॉप नॉच है, जो उसका माइक वाला पार्ट है, उसको कपड़ा जो है ज्यादा रगड़े ना, और उसका छोटा सा जो ऊपर वो जो उसकी टोपी होती है वो गुम ना हो जाए, गुम हो गई तो फिर आपको 5-6 हजार रुपए देने पड़ते। बेसिकली 2 things, leveling and no rubbing of the clothes over the microphone,
दैट्स द टू बेसिक थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ. एंड थर्ड, इन जनरल, कि भाई फिल्म डब होने वाली है या पायलट ट्रैक रिकॉर्ड होगा. पायलट ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो रीटेक होंगे. आपने अगर ठीक से नहीं दिया टेक, साउंड की वजह से भी कई बार रीटेक लेना पड़ता है. तो आपकी साउंड जो है गड़बड़ कर दिया आपने, कहीं कुछ बोल गए, किसी ओवरलैप कर दिया साउंड में. ओवरलैपिंग परफॉर्मेंस का पार्ट है, बट अगर आपकी साउंड में एक कैरेक्टर के डायलॉग पे दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग का साउंड ओवरलैप है, तो उसको अगर अलग करना है या उसमें बीच में कुछ पॉज देना है डायरेक्टर को एडिट करते वक्त, तो वो नहीं दे पाएगा. तो ओवरलैपिंग also should be avoided while delivering a dialogue, but that's a part of performance, not a technical understanding, I would say. So if we talk about boom mics, condenser mics, unidirectional या फिर multidirectional, ये उसका वो सब यहाँ पर नहीं वो है. सब चीजों का आपको सोचना ही नहीं है. आपके ऊपर बूम माइक लगाया हुआ है, उसको पता है वो बूम माइक क्यों लगा हुआ है. Right. वो साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम है कि आपकी वॉइस को कैसे कैप्चर करना है. Okay. लेवल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि जो आपने लेवल दिया है वो सेट करने के लिए, उसको बीच बीच में लेवल चेंज नहीं करते रहना चाहिए. आपका जो लेवल है वो मोरलेस वही रहना चाहिए, अनलेस की शॉट के अंदर अभी आप नॉर्मल थे, अब आप एकदम से गुस्सा हो गए और किसी को चढ़ गए, तो नेचुरली आपका लेवल जो है चेंज होगा. समझे कि नहीं? But normally, if there is going to be a normal kind of a situation, the level should remain more or less at the same. You should not change your levels while giving the leveling should be given the way you would be speaking the dialogue while you are performing. Okay. Thank you. Next, Jaideep Bhadoria. सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं. एक्चुअली जो सेकंड राउंड होता है रिटन एग्जाम के बाद, जो सेकंड राउंड होता है, Correct. उसमें मोनोलॉग का जो लेंथ है वो डिसेंट लेंथ किसको बोलेंगे? Decent length जो है, आप ये समझ के चलिए कि एक आदमी को 25 मिनट मिलने वाले हैं. अच्छा, ये टोटल टाइम है सर? हाँ जी, मेरे हिसाब से टोटल टाइम है, इससे ज्यादा देते नहीं है वो लोग. फर्स्ट राउंड के अंदर 25 मिनट के अंदर 2 मोनोलॉग परफॉर्म करने होते हैं. तो आइडियली स्पीकिंग मैं बोलूंगा 7 मिनट से ज्यादा का मोनोलॉग आपका नहीं होना चाहिए. कभी कभी वो लोग दूसरा मोनोलॉग सुनता ही नहीं है, एक में ही डिसाइड कर लेते हैं. मैंने बहुत से लोगों से बात की है, उन्होंने बोलते हैं 2 तो दिए थे, एक उन्होंने अपना दिया था, एक हमारे वाला था, वो एक ही सुना उन्होंने. क्यों? क्योंकि दूसरे वाले तो सभी वही बोले जा रहे हैं. एक ही चीज एक दिन में अगर मान लो 15 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, तो 15 लोग वही बोले जा रहे हैं, तो कई बार बोर हो जाता है आदमी. तो पहला वाला जो डायलॉग मोनोलॉग है, वो आपने जो चूज किया वो परफॉर्म करिए. ये ट्रिक है, थोड़ी सी बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वो तो सभी लोग कर रहे हैं दूसरे वाला तो. बट सभी लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं. आपका तरीका अलग होगा, किसी और का अलग होगा. हिंदी का तो मोनोलॉग एक ही दिया गया है, सबों को वही पिकअप करके लाए हैं लोग. 90% लोग हिंदी का ही पिकअप करके लाते हैं, एक्सेप्ट द केरला बॉयज और समबडी हु सेंट स्टीफन, सेंट थॉमस, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो आप पहला इंप्रेशन आप अपना देंगे, आपने क्या प्रिपेयर किया. तो जो भी मोनोलॉग आप वो जो परफॉर्म करना होता है, उसमें पहले आप अपना परफॉर्म करेंगे. उसके बाद जो दूसरा उन्होंने दिया है, कभी कभी वो ये भी बोल सकते हैं नहीं वो रहने दो बस, ठीक है, समझ आ गया. इफ दे आर इम्प्रेस्ड विद इट, दे मे नॉट आस्क द सेकंड. फिर वो कुछ पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे आपसे, कुछ बात की जाएगी आपसे, कुछ भी लंबी चौड़ी घुमा फिरा के. स्टेला एडलर ने ये बोला, उसने ये बोला, स्टेनिस्लावस्की ने ऐसे कहा था. मैंने बहुत लोगों के आंसर पढ़े हैं. दे आर कोटिंग अदर पीपल. तुमको छोड़ दो, तुम अपनी बात करो. तुमसे पूछा जा रहा है, स्टेनिस्लावस्की थोड़ी पूछा जा रहा है, तुम अपनी बात करो. जब स्टेनिस्लावस्की के बारे में पूछा जाएगा तो नोट्स लिखना उसका. जनरल बात हो रही है, उसमें स्टेला एडलर कोट कर रहे हो आप. मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक एक्टर को टेक्निकल कौन कौन सी चीजों की अवेयरनेस होना चाहिए, आप उसके बारे में बताइए मुझे. घुमा फिरा के इधर उधर की बात नहीं करते. मैंने आपसे पूछा पटना कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए पटना जो है बिहार के अंदर है. बात खत्म. अब आप बोलोगे हिंदुस्तान में एक राज्य है जो नॉर्थ की तरफ को है, और वो बंगाल से जुड़ा हुआ है और यूपी से जुड़ा हुआ है, और उसके आसपास जो है शायद ये वाला भी वो है, और फिर जो है वहां एक शहर है पटना. ये जो बकवास की आपने इधर उधर की, ये मत बताइए. सीधा एक सेंटेंस, वेयर इज पटना? पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार. बात करते. इधर उधर की बातें नहीं करनी. इधर उधर की बात करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे लिखने में, और बीटिंग अराउंड द बुश इज नॉट अप्रिशिएटेड. जेंटलमैन, प्लीज अंडरस्टैंड. टू द पॉइंट, बी ब्रीफ. दैट इज द थ्योरी. नेक्स्ट सर एक लास्ट क्वेश्चन था. वैसे तो 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए. एक कोई लास्ट क्वेश्चन. दो पूछ लो, कौन सी आफत आ रही है. नहीं सर, दोनों के आंसर मिल गए, तो इसीलिए तो बस टाइम बर्बाद मत करो.
ओके, सो एक क्वेश्चन ये था कि मतलब इसमें हम लोगों, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ अगर मेरा पोएम लिखा है, खुद से लिखा है, तो वो भी मैं सुना सकता हूँ? तुम पोएट हो? हाँ सर, मैं लिखता हूँ। बहुत अच्छी बात। कभी कोई पोएट्री की किताब छपी है आपकी? नहीं सर, ऐसे तो आप 70-80 पोएट? लिखी है, ऐसे छपाई फेसबुक नहीं है। पे 50 पोएटों को मैं पढ़ता हूँ रोज। मैं पोएट्री, ये जो पोएट्री है ना, कि मैंने भी पोएट्री लिखी है। ये पोएट्री क्या है? अरे हम तो बंगाल जाएगा, तालाब में मछली उगाएगा, फिर उसको खाएगा, फिर फेसबुक पे फोटो लगाएगा, ये सब नहीं। अपनी पोएट्री को अपने घर में रखो, जब वो छप जाए तब वो पोएट्री है। जब तक छपी नहीं है वो पोएट्री वोएट्री कुछ नहीं है। फेसबुक पे ऐसी 50 पोएट्री रोज पढ़ता हूँ। अपनी पोएट्री को अपने पास रखो, ऐसी पोएट्री लो जो दूसरे आदमी को इंप्रेस करे, उसको समझ आए कि तुमने जिंदगी में कुछ रश्मि रफी फती पढ़ा है अपनी जिंदगी में, कुछ और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं पोएट्री के नाम पर, उनको ले लो भैया, पूरा देश जानता है उनको। ऐसे आदमी को उठाओ जिसकी कुछ महिमा हो, जिसको लोग जानते हो, पहचानते हो। तुम्हारी नहीं सर, पोएट्री वो से तो कोई इंप्रेस होने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब मैंने तो नहीं पढ़ी वो है तुम्हारी पोएट्री, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अपनी पोएट्री को अपने पास रखो। पहले एफटीआई में घुस जाओ, उसके बाद अपनी पोएट्री लोगों को ओल्ड मॉन्ग पी के सुनाते रहो। अभी पहले घुस जाओ वहां पे, अपनी पोएट्री अपने पास रखो, ये मेरा सुझाव है। बाकी डेमोक्रेसी है, आप कुछ भी करो। समझ गया सर, समझ गया। बात समझे? यस सर। मैं दिनकर की रश्मि रथी से इंप्रेस होऊंगा, ना कि कोई खन्ना जी मल्होत्रा जी अपना ये जो पोएट्री मैंने आपको सुनाया अभी, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, हो सकता है बहुत यस अच्छा लिखा हो आपने, नहीं, मैं समझ गया सर, आपका पॉइंट जो है वो मैं वो कंप्लीटली आप समझ रिस्क गया। ले रहे हैं, आप एक रिस्क ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। यस सर। ये रिस्क नहीं चाहिए। रिस्क लेना है, अगले साल फेल होना है, 1.5 साल के बाद तुम्हें पता लगेगा कि तुम अपनी उटपटांग की पोएट्री सुना के आगे वहां पे और फेल हो गए, फिर लाइन में लग गए। इस पूरे फोरम के अंदर 5 लोगों को जानता हूं तो 2 साल से फेल हो गए। तो रिस्क मत लो, जी सर। रिस्क मत लो। ठीक है, पहला राउंड है, वहां से बाहर हो जाओगे तुम लोग। 75 में से 35 लोग रहेंगे, 30 लोग बाहर होने वाले हैं, 40 लोग बाहर होने वाले हैं। अगर तुम्हें शौक है 40 में पहले राउंड में बाहर हो जाना, ले लो, सुनाओ अपनी पोएट्री उनको जाके। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। नहीं सर, समझ गया, एक्चुअली क्लियर हो गया। तुम इम्प्रेस भी कर दो, हो सकता है कुछ खतरनाक पोएट्री लिख के लाए हो सकता है, बट उसकी नहीं हो सर, सकने के चांसेस बड़े कम है। समझ गया सर, समझ जो गया। पद्म भूषण लेके बैठे हुए हैं, उनका पढ़ लो थोड़ा सा। यस। हाँ जी, नेक्स्ट कौन हो गया भाई? ये नव जयदीप भदौरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, नव्या। हो गया सर, मेरा हो नव्या, गया। नव्या, NAVYA। हेलो सर। सर मैं पूछ रही थी कि जो मोनोलॉग है जो परफॉर्म करना होता है, तो उसमें इज इट इम्पोर्टेंट कि हम पोइट्री करें और वी कैन आल्सो परफॉर्म अ पीस ऑफ टेक्स्ट? देखिए, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। आप कोई डायलॉग सीक्वेंस का एक पार्ट जो लंबा है, मोनोलॉग का मतलब यही होता है कि स्पीच। ठीक है जी, जूलियस सीजर से आपने एक स्पीच ली, शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस के अंदर आपको मोनोलॉग मिल जाएंगे बीच बीच में। ठीक है, आप वो पकड़ लीजिए 3 मिनट का या 4 मिनट का। 4 मिनट से ज्यादा का 5 मिनट में आप बम फेंक दो। 5 मिनट के अंदर आप कोई भी पोएट्री, कोई भी टेक्स्ट जिसमें इमोशनल कंटेंट हो, जिससे आदमी सुनने के बाद हिल जाए, आपको वो करना है। वो पोएट्री भी हो सकती है, वो शेक्सपियर का नाटक भी हो सकता है, वो किसी फिल्म का पार्ट भी हो सकता है जो मोनोलॉग टाइप का हो, टाइप का। ठीक है, और वो कोई टेक्स्ट भी हो सकती है, कोई किसी भी फिल्म, किसी भी क्या बोलते हैं, एस्से का टेक्स्ट हो सकता है, किसी का कोई किसी चीज के ऊपर एस्से है और आपने वो, आपको बहुत अच्छा लगा वो पार्ट, आपने वहां से कुछ भी चूज करो आप, बट शुड बी एबल टू, यू हैव टू परफॉर्म इट। वो पढ़ना नहीं है बात। अब यही रश्मि रथी, वो लड़का जो है, क्या नाम है उसका, आशुतोष राणा, उसने हिंदी के अंदर, यहाँ पर हिंदी का कुछ चलता है, आज तक वालों का कुछ रैकेट, या वो पता नहीं, जो नेशनल इंडिया टुडे का कुछ फंक्शन था, उसमें उसने रश्मि रथी पढ़ी, परफॉर्म नहीं किया उसने, पढ़ के चला गया और लोग उसी में तालियां बजा रहे हैं। रश्मि रथी उसने पढ़ डाली वहां पर, लोग उसी में खुश हो गए।
बट मेरे लिए उसने परफॉर्म नहीं किया, उसके वो पढ़ के चला गया। तो अगर आप पढ़ के, ये है वो वीडियो मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा था आपको दिखाने के लिए कि आशुतोष राणा जैसा आदमी परफॉर्म नहीं किया, उसने पढ़ा और चला गया, पढ़ के चला गया बैठे बैठे, और लोगों को लगा कि परफॉर्म कर रहा है। मैंने उसको 2 बार ध्यान से देखा, मैंने कहा तो चूक गया आदमी। तो वहां परफॉर्म करना है कि उसमें महसूस होना चाहिए दूसरे आदमी को कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, या ये कर्ण बोल रहा है, या ये दुर्योधन बोल रहा है। तो परफॉर्मेंस महसूस होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट। कुछ भी चूज करिए, इट इज इमैटेरियल। सर मेरे 2 क्वेश्चन और हैं। बोलिए बोलिए। जो फिल्म एनालिसिस आपने बोला वो क्या जहाँ एमसीक्यूज थे वही वेबसाइट पे ही अवेलेबल है? एमसीक्यू वहां पर नहीं है, एमसीक्यू का साइट अलग है। ये जो है 2 पेजेस हैं जो मैंने अपने फिल्म स्कूल वाले, हमारा जो फिल्म स्कूल का वेबसाइट है वहां डाले हुए हैं। उनको मैं कल दोबारा से यहाँ पर ये वाला जो एक्टिंग वाला पार्ट है इसमें मैं उन दोनों का लिंक जो है लोड कर दूंगा, so that you can look at it from here, because many people did not sign up for the 2 thing. So maybe I think I loaded there on MCQ page, or I loaded on direction class which happened before you people. So I will check. Anyway, I will reload both the links on this site. ओके सर। सर एक क्वेश्चन होता है पेपर में कि आपका कोई फेवरेट टीवी शो है उसके बारे में बताइए। तो सर टीवी जो है मैं देखता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दे नहीं सकता। बट आप जो है कोई भी टीवी शो जो आपको अच्छा लगता हो, टीवी शो का मतलब वो नहीं है वेब सीरीज। वेब सीरीज इज अ डिफरेंट थिंग, टीवी इज अ डिफरेंट। ओके सर। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज जो डिस्कस कर रहे थे पॉइंट कि हमें लेंस की एक एक्टर को सेट पर लेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो उसमें जो पॉइंट है कि आपने बोला कि एक्टर को पता होना चाहिए कि उसका कौन सा बॉडी का पार्ट विजिबल है करेक्ट। कैमरा पर। तो सर उसमें क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब उसको ये पता हो कि कौन सा टाइप ऑफ शॉट लिया जा रहा है, कि प्रोफाइल शॉट लिया जा रहा है कि वाइड शॉट लिया जा रहा है? देखिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एरिया पता होना चाहिए बॉडी का कितना पार्ट है, उसका क्लोजअप है, प्रोफाइल से है या फ्रंट से है, वो अलग बात होती है। उसको एक लुक के लिए डायरेक्टर एक वो देता है, हिंट, क्लू, कि आपको ये डायलॉग इस खंबे पे या इस कटर स्टैंड पे या इस लड़की को या इस लड़के को या कोई एक, उसको एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, उसके ऊपर देख के बोलना है। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स हो जाती है, वो इधर उधर नहीं देख सकता, कहीं नहीं देख रहा है। तो वो कंटिन्यूटी का चक्करबाजी होता है कि 2 कैरेक्टर बात कर रहे हैं, तो उसको उसमें ये फर्क नहीं पड़ता उसको कि आपने साइड से प्रोफाइल कैमरा लगा रखा है, मेरे को जहां देखना है मैं वहां देख के डायलॉग बोलूंगा, कैमरा कहीं भी। उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा कैमरे में मिड शॉट है और मैं हाथों को कुछ करा मैंने, तो वो फ्रेम में रहेंगे या फ्रेम से बाहर चले जाए, फ्रेम से बाहर नहीं जाने। अब जैसे मेरे हाथ फ्रेम से बाहर है, ठीक है, अगर मैंने यूं कर दिया तो फ्रेम से बाहर हो गए, बट मैंने अगर यहां तक रखा तो फ्रेम में रहे। तो मुझे पता रहना चाहिए कि मेरा फ्रेम क्या है, और मेरे को या तो मुझे दिख रहा है सामने, बट वहां थोड़ी दिखता है। तो वहां पे आपको अंदाजे से ध्यान रखना होता है कि आपके हाथ यूं नहीं करेंगे, आपने यूं करा तो फ्रेम से बाहर हो गए, आप जो भी कुछ करेंगे वो यहां तक करेंगे, ये चलेगा। यूं कर दिया तो खेल खत्म। दैट्स व्हाट आई मीन टू फ्रेम साइज, इमेज साइज जिसको बोला जाता है। वो लेंस की वजह से आपको ज्यादा और क्लियर हो जाता है कि 50 mm का लेंस और इतनी दूर पे है तो मेरा कितना एरिया कवर होगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट शुभम कुमार। हेलो सर। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं सर। सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में ये पूछा जाता है कि हाउ आर यू गोइंग टू सेल योरसेल्फ एज एन एक्टर, तो पूछना एक मूर्खता है। हाँ, एक तो पूछा जाना नहीं चाहिए, और अगर पूछा जाना चाहिए तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। अच्छा ठीक है सर। मार्केटिंग का पार्ट है कि आप अपने आप को कैसे मार्केट करेंगे। मान लीजिए आप गए तो आप काम कैसे करेंगे, ये मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल समझने के लिए, तो एक अलग बात है। बट इस बात का एक्टिंग से कोई लेना देना। अच्छा ठीक है सर। और सर दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है, क्या कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कोई मूवी का एनालिसिस करने दिया जाए और आप उससे आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखा जाए? क्योंकि जैसे आपने बोला था कि द डायरेक्टर डजंट वांट एनी स्टूडेंट टू कम एंड प्रोटेस्ट, मतलब उस तरीके से अगर मान लीजिए रंग दे बसंती के बारे आ गया, ठीक है, एंड यू हैव टू टेल योर एनालिसिस एज टू व्हाट। होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि जनरली क्या होता है वहां पर जब आप जाएंगे तो एक शॉर्ट फिल्म कभी दिखा सकते हैं आपको,
डेली एक फिल्म दिखाई जाती है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, डेली एक फिल्म दिखाई जाएगी आपको शाम को, और उसके बारे में भी अगले दिन पूछा जा सकता है। हो सकता है डोमेन स्पेसिफिक वाले लोगों को, एक्टिंग वालों को एक खास टाइप की कोई शॉर्ट फिल्म दिखाई जाए, उससे रिलेटेड कोई बात आपसे पूछी जाए, कोई एड दिखाया जाए या कुछ भी दिखाया जाए, तो उसमें आप जो है उन चीजों को इग्नोर करके कुछ और चीजों की बात करिए, जिससे आपका ये पॉलिटिकल, आपको पता लगता है मेरी बातों से कि मैं कांग्रेस का आदमी हूँ या बीजेपी का आदमी हूँ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। That's it. मुझे क्या लेन देना है? ओके सर। वो एक अलग बात है कि अगर किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर मुझसे पूछा जाए कि भाई आप इस चीज के ऊपर क्या सोचते हो, तो वो मेरा एक थॉट प्रोसेस है, वो मैं बता सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और केवल जो एस्थेटिक और टेक्निकल चीजें हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। सर तो अगर मान लीजिए इफ बाय चांस अगर ऐसा आता है वेर यू हैव टू पुट योर एस्थेटिक मतलब ऑन अ सोशल इशू, ठीक है, बिकॉज जो मूवीज बनती हैं, ठीक है, वो जो जिसे क्रिटिकली अक्लेम मिलता है तो वो ज्यादातर सोशल इश्यूज पर ही बनती है। अब आप रंग दे बसंती को देख लो, इट वाज मेड इन बैक इन 2006, ठीक है, बट इट स्टिल इज हैविंग दैट रेलेवेंस टिल नाउ। तो अगर उस बेसिस पे पूछा जाए तो सर शुड वी बी वेरी ऑनेस्ट? सोशल इशू पे फिल्म बनना एक अलग चीज है, हम्म, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होना एक अलग चीज है। सोशल इशू पे मैंने मान लीजिए थप्पड़ बनाई, या मैंने वो जो चेहरे पे जो क्या था वो फिल्म दीपिका छपाक, पादुकोण, छपाक, हाँ, छपाक में अब पॉलिटिकल क्या चक्करबाजी है बताइए आप? कांग्रेस बीजेपी का और ये सीपीएम और सीपीआई का क्या लेन देन है उससे? है कोई लेन देन? नहीं सर। बस बात खत्म। ओके सर, गॉट इट। Political issue is a different thing. Social issue is a different thing. Political ideology is a different thing. एक किताब है कार्ल मार्क्स का अर्ध सत्य, तो नेचुरली है कि कम्युनिज्म से कनेक्टेड होगा, उसका कुछ लेना देना। यस सर। तो वो पॉलिटिकल हो गया खेल। हम्म, आपसे कोई पूछे कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है, आपने बोला मैंने कार्ल मार्क्स का अर्ध सत्य पढ़ा है, इसका मतलब कम्युनिज्म के चक्कर में लगे हो, लाल रंग का झंडे में इंटरेस्ट है तुम्हारा। ठीक है सर, समझ गया। कौन सी अच्छी किताब लगी तुम्हें, आपने रिसेंटली पढ़ी, आपने बोल दिया कार्ल मार्क्स का अर्ध सत्य, मतलब कार्ल मार्क्स में इंटरेस्ट है आपका। अच्छा बताइए कौन से रंग का झंडा पसंद है आपको, यहाँ कौन से रंग का झंडा पकड़ के बैठेंगे आप यहाँ पे एफटीआई में? पढ़ने जा रहे हो या झंडा पकड़ने जा रहे हो? सर पढ़ने जा रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बस वही है कि इसी, हाँ, जो रिवॉल्यूशन करनी है, फिल्म बनाने में रिवॉल्यूशन करना, फिल्म जब बनाओगे तो उससे रिवॉल्यूशन करना, पढ़ाई के वक्त तो रिवॉल्यूशन मत करो। यस सर। 4 महीने लोगों ने बर्बाद किए इस बात के लिए कि वहां पर जो है चेयरमैन हमारा कौन सा है। तो तुम अब जब एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो तुम पूछ रहे हो एफटीआई से कि भाई हमारा चेयरमैन कौन है बताओ, तब हम फॉर्म भरेंगे। तुमने यस सर। पूछा, पूछते थे, मत भरते फॉर्म। तब तो तुम प्रार्थना कर रहे होते हो हनुमान जी के आगे, यार सिलेक्शन हो जाए बस किसी तरीके से, तब तुम नहीं पूछते हो चेयरमैन कौन सा है। जब आप पहुंच जाते हो और कोई काम नहीं होता है तुम्हें टाइम पास करने के लिए, तब तुमको पूछना है कि भाई चेयरमैन कौन बन गया, ये क्यों बन गया, तो टीवी का एक्टर है, इसको तो सिनेमा पता होना चाहिए। हाँ ये सर, ये डिबेट भी हुई थी। 4 महीने बर्बाद किए लोगों ने अपनी जिंदगी के इस बात में, और उसके बाद लौट के बुद्धू घर को आए। 4 महीने जीवन के बर्बाद हो गए किस बात के लिए कि हमारा चेयरमैन कौन। हमारा चेयरमैन एक रेस्पेक्टेबल आदमी होना चाहिए, हम तो बड़े आदमी, हम तो एफटीआई में पढ़ने आए, हमारा चेयरमैन तुमने टीवी का आदमी बना दिया, बताओ क्या लेन देना चेयरमैन को। एफटीआई के अंदर अडूर गोपाला कृष्णन वाज द चेयरमैन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। 3 साल के अंदर उसने 3 दिन क्लास नहीं ली। आते हैं फ्लाइट में, जाते हैं, फिर बकवास करते हैं, फिर चले जाते हैं वापस। तो ये सब फालतू की जो चीजें हैं इसका कोई मतलब नहीं। यस सर। पढ़ाई लिखाई से कनेक्टेड कोई चीज है कि किताब ये वाली इंपॉर्टेंट किताब है, इसका लाइब्रेरी में होना चाहिए, या ये डिफ्यूजन मटेरियल हमारा फट गया है, पुराने वाला है, हमारे पास नहीं है, तो समझ आता है। कुछ उन चीजों के बारे में बात करो, समझ आता है। तुम बात करो चेयरमैन कौन है हमारा चेयरमैन ये होना चाहिए, लड़ लो, करो बर्बाद 4 महीने अपनी जिंदगी। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे, टीचर तो चाहते हैं कि तुम स्ट्राइक करो, क्योंकि उनको तो बिना पढ़ाने के पैसे मिलेंगे। फिर कौन आदमी चाहेगा कि पढ़ाना पड़े? कोई नहीं चाहता, तो चाहते तुम स्ट्राइक पे ही रहो जिंदगी भर, जिंदगी भर स्ट्राइक पे। सर बात यही होती है ना कि
जैसे कुछ बच्चे स्ट्राइक पे उतर जाते हैं तो उसके कारण जो द रेस्ट ऑफ द लॉट दे आल्सो सफर। कोई नहीं, कोई बसा बकवास है। मैंने भी एफटीआई में पढ़ाई की है। मैं भी जब वहां गया था, कुछ लोग चाहते थे स्ट्राइक को। मेरा एक थ्योरी था लाइफ में, 3 साल तक जब मैं रहूंगा ना तो स्ट्राइक होगी ना मैं करने। 3 साल मेरे निकलते ही वहां पर जो है स्ट्राइक झंडा लेके बैठ जाओ। मैं तो निकल गया, बात खत्म, मुझे क्या लेन देना, करते रहो, करो अपना टाइम बर्बाद। सो फॉरगेट अबाउट इट। यस सर। You are going to study to learn a craft of filmmaking, learn it and come out of it and enter in the industry and prove yourself if you can. डेफिनेटली। Next, थैंक यू। शुभम कुमार गेस्ट हो गया, प्रणय वोरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, फॉरेन एक्टर्स की एक्टिंग को समझने के लिए कोई यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट या फिर कुछ लिंक है? करीब 10 एक चैनल्स का लिंक मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। वो मैं दोबारा से कल, अगर यहाँ नहीं डाला हुआ है तो मैं यहाँ लोड कर देता हूँ। 10-12 चैनल मैंने जीरो इन किए हुए हैं। वैसे बहुत सारे चैनल हैं अलग अलग, तो ऐसा कोई फिक्स चैनल नहीं है। यू हैव टू वॉच कपल ऑफ चैनल्स एंड फिगर इट आउट व्हिच इज टॉकिंग अबाउट व्हाट। So I have zeroed in roughly around 10 channels which I very often watch. I will post here tomorrow the list. Okay. विकास अटल। हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर अगर मैं ये बोलता हूँ वहां जाके, वो पूछते हैं कि आपने गांधी को पढ़ा है या गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसे आपने रीड किया है, तो मैं बोलता हूँ हाँ। तो आप सर इसे किस तरह देखते हैं? मैंने भी पढ़ी है ऑटोबायोग्राफी आज से 25 साल पहले। किस तरह से देखते हैं क्या मतलब हुआ? देश का नेशनल लीडर है इसलिए हमें इंटरेस्ट आया तो मैंने पढ़ ली वो किताब। तो सर नहीं, ये नहीं पूछ रहा, वहां पे वो पूछेंगे कि इसे आप पॉलिटिकली कैसे कनेक्ट करेंगे। अभी तुम क्वेश्चन, अब तुम मुझसे पूछ रहे क्वेश्चन, मैं यहाँ पर जो है एक इंटरव्यू दे रहा हूँ और आप मुझसे पूछे गांधी जी की बायोग्राफी के बारे में क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं। मैं ये पूछ रहा था सर कि आप जैसे आप एफटीआई के इंटरव्यू लेने वाले ऐसे क्वेश्चन पूछो। तुम चेयरमैन हो, मैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हुआ हूँ, तुम मुझसे ऑटोबायोग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछोगा। इधर उधर की बात छोड़ के आस्क मी अ क्वेश्चन। आप महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसे आप किस तरह देखते हैं? आपने इसे रीड किया है तो आपने क्या रीड किया है इसमें? आदमी अपने बायोग्राफी के बारे में लिखता है, कैसे उसने अपना ग्रेजुएशन किया, कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, किस तरीके से पॉलिटिक्स में आया, कौन कौन सी चीजें थी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, कौन कौन सी चीजों को उन्होंने सीखा। गांधी जी की बायोग्राफी में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो मैं अब तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ दोबारा से, कि लॉ तो पढ़ा मगर वकालत करनी ना सीखी। ये हिंदी की बायोग्राफी पढ़ी थी मैंने किसी जमाने में, तो ये सेंटेंस उसमें लिखा हुआ है। लॉ तो पढ़ा मगर वकालत करनी ना सीखी। क्यों? क्योंकि वकालत में झूठ बोलना पड़ता है। हर वकील कोर्ट में जो जाता है उसमें 1 महीने के अंदर कम से कम 10 बार झूठ बोलता है वो। तो गांधी जी झूठ नहीं बोल पाए। तो उनका जो कहना है कि वकालत तो पढ़ी, लॉ तो पढ़ा, वकालत तो वो सॉरी लॉ तो पढ़ा बट वकालत करनी ना सीखी। इसका क्या मतलब है? झूठ बोलने का जो आर्ट है वो मैंने नहीं सीखा, तो मैं लॉयर नहीं बन पाया ठीक से। लॉयर तो झूठ बोलता ही है, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। आधा झूठ बोल रहा होता है और मजिस्ट्रेट को पता है कि झूठ बोल रहा है। आज मेरा क्लाइंट क्यों नहीं आया कि जिसके पेट में दर्द था और वो हॉस्पिटल में हो गया और फलाना हो गया, ढिमका हो गया, घर में बैठा हुआ है। तो आप जो है किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, दैट इज द पॉइंट। समझे आप? सर मैं पूछना चाह रहा था सर, आप जो एक्टर्स हैं एक्ट्रेस हैं कैटरीना कैफ, उसे आप किस तरह देखते हैं, उसकी एक्टिंग स्टाइल को या उसकी जो फिल्में हैं उसको? हो सकता है कभी वो सीख जाए, एक्टिंग कर रही है, धीरे धीरे सीख रही है वो थोड़ा थोड़ा, बट अभी सीखी नहीं। और सर उसकी तुलना में अगर आप ये एक्टर जैसे दीपिका पादुकोण या और दीपिका भी पादुकोण इज मच बेटर एक्ट्रेस देन कैटरीना कैफ, एटलीस्ट 10 टाइम्स। और सर क्या ये जो डायरेक्टर है आशुतोष गोवरीकर, क्या इसे हम महान डायरेक्टर कह सकते हैं इंडिया का? हर महान डायरेक्टर कह सकते हैं बट दूसरे सेंस में कह सकते हैं। कुछ एक फिल्में उनकी डूब डाल दी, जैसे ये पानीपत में सबसे बड़ी गलती क्या की उन्होंने कि उस आदमी को पेपर टाइगर को टाइगर बनाने की कोशिश कर रहे हो। पेपर टाइगर समझते हैं आप? पेपर टाइगर को टाइगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप पानीपत में। अर्जुन कपूर, जिसको एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, अर्जुन कपूर ही है उसका नाम। यस सर। उसको आप जबरदस्ती लार्जर देन लाइफ
इतना बड़ा आदमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, गलती हर एक से होती है। उसमें बीच में एक और फिल्म बनाई थी उसने, कोई बंगालियों में वो एक रिवॉल्यूशन हुई थी, उसके ऊपर बनाया था, वो फिल्म का कुछ नहीं हो पाया। और भी उसने बीच में फिल्में कुछ बनाई हैं, मोहनजोदाड़ो में भी कुछ ज्यादा खेल नहीं हो पाया, अगेन ए मिस्टेक। जोधा अकबर में खेल किया उसने, व्हाट इज योर राशि में भी कुछ हो नहीं पाया, सब्जेक्ट अच्छा था बट कुछ नहीं हो पाया। प्रियंका चोपड़ा को उसने 7-8 कैरेक्टर दिए, बट प्रियंका चोपड़ा एज ए परफॉर्मेंस अच्छी हो पाई, बट फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाई। शाहरुख खान के साथ जो फिल्म की थी स्वदेश, वो अच्छा फिल्म माना जाता है, लगान अच्छा फिल्म माना जाता है। तो हिंदुस्तान के इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स में है, उसने अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया है, बट अभी काफी समय से वो हिस्टोरिकल वाले खेल में फंस गया है। सर जो आप राजस्थान कई बार आए होंगे, तो सर राजस्थान कल्चर को आप किस तरह राजस्थान देख? कल्चर को हिंदुस्तानी सिनेमा में ठीक से अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। राजस्थानी कल्चर के अंदर बहुत कुछ है जिसको सिनेमा के अंदर एक्सप्लोर किया जा सकता है, बट अभी तक नहीं किया गया है, खास तौर पे राजस्थान का म्यूजिक। सर राजस्थान का जो फोक म्यूजिक है उसको हिंदुस्तानी सिनेमा में ठीक से एक्सप्लोर आज तक नहीं किया गया है। हाँ, ये बात सही है सर, काफी अच्छा है और काफी जैसे जुड़ा हुआ है, जैसे अपने जो इस इतिहास है और जो अपने वैल्यूज हैं उनसे मजबूती के साथ। और सर राजस्थान में काफी चीजें हैं, मरुस्थल है, ये उन सबको दिखाना चाहिए, किले हैं अच्छे अच्छे, उनमें ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। किले के अलावा वहाँ की कल्चर है, वहाँ की स्टोरीज है, हाँ, वहाँ की बोलियां हैं, इसको लैंग्वेज आल्सो, लैंग्वेज आल्सो, वो कल्चर के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो कल्चर इज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड सो फार इन द इंडियन सिनेमा प्रॉपर्ली, एंड आल्सो म्यूजिक इज वेरी अमेजिंग ऑफ द राजस्थान व्हिच इज आल्सो नॉट बीइंग। थोड़ा सा गुलजार ने कोशिश की थी, डिम्पल कपाड़िया को लेके एक फिल्म बनाया था, यारा सीली सीली इसमें गाना है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। 1-2 फिल्में और बनी है, बट बहुत सारी फिल्में नहीं बनी। सर रुदालिया, रुदालिया, रुदाली, करेक्ट। मयंक दवे, वहाँ का पहनावा सर, करेक्ट, मयंक दवे। हाँ सर, मैं ये क्वेश्चन था कि जैसे आप लेवलिंग की बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि एक परफेक्ट लेवल देना होता है। तो कई बार ऐसा सीन होता है जहाँ पे आपको चिल्लाना होता है, तो वो एक लेवल तो आप देते हो, लेकिन जब सीन करते हो तो कई बार मैंने बोला भी था, आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने बोला था कभी कभी आप नॉर्मल से एबनॉर्मल होते हैं सीन में, तो वो रिहर्सल के टाइम में वो साउंड रिकॉर्डर्स को पता लग जाता है कि इस पॉइंट पे जाके ये एबनॉर्मल होगा। तो मैंने नॉर्मल सिचुएशन की बात की है जिसमें आप ऐसा नहीं करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में आप अपना वेरिएशन जो है नहीं रखते हैं, वो बड़ा रेयर होता है कि आप, होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता है, बट वो हमेशा नहीं होता है। वो नॉर्मल से एबनॉर्मल कब होंगे, वो 50 में से एक सीन के अंदर ऐसा होगा। ओके सर, एक और क्वेश्चन था। जैसे आपने कहा था कि वो आपकी एक साइट है जहाँ पे सब आपने अपलोड किया हुआ है एमसीक्यूज एंड ऑल, तो वो कैसे एक्सेस कर पाएंगे, मतलब उसके और बारे में? एफटीआई हमारा जो क्राफ्ट की वेबसाइट है उसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है ऑनलाइन थिंग। मैं कल पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो जो आदमी एक्सेस करना चाहेगा वहां से देख लेगा। ट्रायल कोर्स है उसमें फ्री का, उसमें आपको अंदर ट्रायल की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने आपको दिखा दिया है सारा कुछ, बट फिर भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और उसके बाद आप उसको परचेज करें। कल मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ। ओके सर। हाँ जी, पृथ्वी सिंह। हेलो सर, हाँ जी, आपने अब आप कहा था कि की लाइटिंग के बारे में बताया था सर, दोबारा बताएंगे एक बार? की लाइटिंग का क्या होता है कि एक सेट के ऊपर मान लो 30-40 लाइटें लगी, मैं एक पोजीशन पे खड़ा हुआ हूं, उसके बाद बात करते करते दूसरी पोजीशन पे चला गया और दूसरी पोजीशन पे 3 और लोग हैं, तो हर पोजीशन पे, पोजीशन ए की पोजीशन, मेन जो पोजीशंस हैं उसके ऊपर एक ऐसी जगह से एक लाइट आ रही होती है जो मेन लाइट है। अगर वो नीचे से आ रही है, ग्राउंड लेवल से आ रही है, या ऊपर से कैटवॉक जिसको बोला जाता है वहां से आ रही है, तो जहां से भी वो की लाइट आ रही है वो मेरे लिए स्पेसिफिकली या मेरे साथ 2 और लोगों के लिए भी बनी होती है। तो मुझे अगर उस पोजीशन पे मैं ठीक से नहीं रुकूंगा, उससे पहले रुक गया, खिड़की से सनलाइट आ रही है मान ली, और मैं पहले रुक गया, तो मेरे ऊपर तो सनलाइट नहीं पड़ी। और अगर मुझे आगे रुकना था और मैं पहले रुक गया, तो सनलाइट तो वहां पे बना रखी है आर्टिफिशियल लाइट से, तो आपको जहां रुकना था अगर आप वहां नहीं रुके तो वो अपने लाइट के ऊपर की वजह से जो आपके फेस के ऊपर चमक आनी थी वो नहीं आ पाई, और जो किसी और ने आपकी लाइट को ब्लॉक कर रखा है तो वो उसकी वजह से जो शेडो आ रही है उसके ऊपर वो नहीं आनी चाहिए। तो हर
मेन पोजीशंस जो होती हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइट ऐसी होती है जो की लाइट होती है, उसको कोई दूसरा आदमी, कोई एक्टर आपका ब्लॉक ना कर दे, वो आपको ध्यान रखना। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट विक्रम ठाकुर, पृथ्वी सिंह हो गया, आकाश शर्मा। सर मेरा ये सवाल था कि मतलब ठीक है, आपने अपना पहला, जब आपका कट ऑफ होता है उसके बाद आप जाते 75 लोग को बुलाते हैं, जो सेकंड और थर्ड राउंड होता है ऑडिशन एंड ओरिएंटेशन इंटरव्यू वाला, उसमें एफटीआई ऐसा क्या देखना चाहते हैं जो छात्र और छात्राएं होते हैं उनसे, कि हाँ कि उस प्रकार से वो लोग छांटते हैं कि हाँ ये इस हमें इससे सेकंड थर्ड राउंड के लिए लेना चाहिए और इस इंसान को नहीं लेना चाहिए। मेरा मानना यह है कि दो चीजें देखते हैं वो, कि क्या ये आदमी परफॉर्म कर सकता है कैमरे के आगे, इसको परफॉर्मेंस में थोड़ा पागलपन है इसके अंदर, वो बात है कि परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पहली चीज तो वो ये देखते हैं। दूसरी चीज ये देखते हैं कि थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी है कि नहीं, गंवार तो नहीं है। पढ़ा लिखा इन द सेंस कि आपसे कोई बातचीत की गई तो आपका ओपिनियन जानना बहुत जरूरी होता है। पॉलिटिकल ओपिनियन को छोड़ दो आप, पॉलिटिकल तो एक चीज हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं देश के अंदर। जैसे एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन के अंदर था ये क्वेश्चन, कि आप हिंदुस्तान की फिल्मों का स्टैंडर्ड बढ़ जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो थिंकिंग प्रोसेस आ गया, आपका थॉट पूछा जा रहा है, बताइए क्या करेंगे आप। मान लो मैं आपको बोलूं आपको एफटीआई का डायरेक्टर बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे एफटीआई, बताइए आप। तो आपका थिंकिंग प्रोसेस देखेंगे ना वो, कि कुछ सोचते हो या नहीं सोचते हो तुम इंस्टीट्यूट के बारे में या किसी के भी बारे में। तो जब उन्होंने पूछा कि देश की फिल्मों का स्टैंडर्ड बढ़े हिंदुस्तान की, उसके लिए कौन से एफर्ट करने चाहिए, किसी एक एफर्ट के बारे में बताइए। तो आपका वहां पता लग गया क्या थॉट प्रोसेस है। तो आपकी थिंकिंग स्किल्स देखी जाती हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल देखा जाता है, और परफॉर्मेंस लेवल देखा जाता है, क्या परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट बहुत है, तो परफॉर्म नहीं कर सकते, बातें कर सकते हैं बस, बातें करना नहीं देखते हैं वो लोग। आपका परफॉर्मेंस लेवल भी देखते हैं, कि बहुत सारे लोग बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, बातें ठीक से नहीं कर पाते हैं, बातों से इंप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट दे कैन परफॉर्म वेरी वेल। तो आपका परफॉर्मेंस का जो लेवल है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है परफॉर्मेंस को लेके, उस चीज को वो लोग चेक करते हैं। फेंकने से कुछ नहीं होगा, स्टेला एडलर फेंक दिया, माइजनर फेंक दिया, ये फेंकने से कुछ नहीं होगा। उसकी कितनी समझ है आपको, वो समझ लेंगे, वो उनको पता है कैसे समझ। ये बात उनको पता है कि तुमसे माइजनर क्या है, ग्रोटस्की क्या है, 3 सेंटेंस में बोलो, वो मतलब फंसा देगा तुमको कहीं ना कहीं से। फिर अगर तुमने वो चीज को पकड़ा है तो आप बता दोगे, नहीं पकड़ा तो इधर उधर की बातें करते रहोगे, घुमाते रहोगे, बीटिंग अराउंड द बुश, गोल मटोल तरीके से बातें करना। गोल मटोल तरीके से बात कौन करते हैं, पॉलिटिशियन। देश की समस्याएं हैं, देश को आगे बढ़ाना है, ये सब बकवास है। टू द पॉइंट, क्या समस्या है देश की बताओ, कैसे बढ़ाओगे। टू द पॉइंट यू हैव टू बी, यू कांट बीट अराउंड द बुश, दैट्स व्हाट दे लुक इनटू इट। गोल मटोल तरीके से बातें कर रहा है, कुछ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, या इसको पता है तो बोल दो, नहीं पता तुम बोलोगे मुझे मालूम नहीं है, आई कांट से अबाउट। बट कुछ तो सोचोगे ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान की फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल के कॉम्पिटिटिव सेक्शन में सेलेक्ट नहीं हुई है, शाजी एंड करुण की लास्ट फिल्म थी ये वाली, उसके बाद क्या हुआ कि हिंदुस्तान की कोई फिल्म कंपटीशन में नहीं हो पाई, आपका क्या कारण है आपके हिसाब से, बताइए। ठीक है, तो कुछ कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है आपके हिसाब से, बताइए। तो कुछ भी चीज जहां पे आपकी थिंकिंग स्किल्स के बारे में चेक करेंगे, आप कितना सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आपके पास कुछ ऐसा थॉट है। थॉट बड़ी जरूरी चीज होती है। एक्टर के पास थॉट थिंकिंग का बड़ा खेल होता है। आपको एक कैरेक्टर दिया गया, ये डायलॉग है, ऐसे ऐसे है, अगर आप खतरनाक एक्टर हैं तो आप उसी चीज को 3 तरीके से परफॉर्म करके दिखाएंगे। ये तुमने जो बोला ऐसे कर दिया मैंने, अब मैं आपको 2 अपने तरीके से भी दिखाऊंगा। तो तभी दिखाओगे ना अपने तरीके से, जब कुछ सोचोगे। तो आप सोचते नहीं हो तो क्या दिखाओगे। तो थिंकिंग स्किल्स
Are you a thinker? Would you be able to give director a variation of 2 other kinds? Director confuse हो जाए, 3 वेरिएशन दे दिए इसने, तो अब मैं क्या करूं? तीनों ही अच्छे लग रहे हैं, रखोगे तो एक ही। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कैरेक्टर का आपको परफॉर्म करना है, पहला दिन है, आप सेट के ऊपर गए, आपको लाइंस दी गई, डायरेक्टर ने बोला ऐसे 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 है, ये चीजें करनी, आपने वो करके दिखा दिया, ठीक है जी। डायरेक्टर ने बोला वाह बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब आपने बोला ये तो ठीक है, आपने जो बोला मैंने करके दिखा दिया, अब मैं आपको इसका 2 वेरिएशन और दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक दूसरा वेरिएशन करके दिखाया, फिर तीसरा वेरिएशन करके दिखाया। अब डायरेक्टर अपनी खोपड़ी पकड़ के बैठ गया कि यार ये तो 2 तो और बड़े अच्छे थे इसने जो करे, मैंने जो बताया वो तो ठीक है, बट इसने जो 2 और चीज करके दिखाई तो बड़ी गजब की चीजें हैं दोनों की दोनों। अब मैं कौन सा रखूं? तो क्या तुम क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हो डायरेक्टर के आगे कि 3 में से एक चूज कर, अब तू बोल? कर सकते हो? कर सकते हो तो यू आर गुड एक्टर। कैन यू गिव ए चैलेंज टू द डायरेक्टर कि मैंने 3 तरीके से इसी चीज को करके दिखाया जो आपने बोला, और आपको तीनों ही अच्छे लग रहे हैं। आपने फंसा दिया डायरेक्टर को। रखोगे तो एक ही तरीके से काम करेगा वो। एक सीरियल है, सीरीज है, वेब सीरीज, मैं देखता नहीं हूं बट मैंने देख ली किसी कारण से, उसका नाम है महारानी। महारानी में एक बंगाली कैरेक्टर है, बंगाली लड़का है, एनएसडी का ग्रेजुएट है, उसने कुछ 3-4 फिल्में छोटे मोटे रोल किए हैं, एयरलिफ्ट में भी था और कुछ 2-3 फिल्मों में और आया है। तो इसमें बंगाली बोलने का जो तरीका है उसका, वो एक तरीके से बोल रहा है। तो अगर मैं डायरेक्टर हूं तो मैं उसको बोलूं एक काम कर, थोड़ा 2 और दिखा मुझे तू करके अलग से तरीके से। आप 2 और कैसे तरीके से बोल सकते हो? तो सारा चक्कर जो है यही है कि वेरिएशन, आप वेरिएशन कैसे दिखा सकते हो। वो मैं क्लिपिंग नहीं दिखा पाया, वो दोस्त का जो छोटा सा मैंने बोला था कि आपको दिखाऊंगा कि एक आवाज लगाने वाला फेरी वाला आदमी किस तरीके से अलग अलग टाइप की आवाज निकालता है अलग अलग चीजों को बेचने के लिए। तो वेरिएशन है एक ही आदमी के गले का। तो वेरिएशन कितना कर सकते हैं आप, दैट इज व्हाट दे लुक फॉर इट। आगे बोलिए नेक्स्ट। और सर एक और सवाल था कि अगर किसी के फैमिली में कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन है बैकग्राउंड में, तो उससे किसी का एडमिशन या उससे कुछ ऐसा चीज तो जरूरी नहीं है कि हाँ वो इंटरव्यू राउंड या ऑडिशन में आएगा, या उससे उस इंसान की कैसे पता लगेगा उनको कि तुम्हारा पॉलिटिकल फैमिली से एफिलिएशन है, जब तक तुम बताओगे नहीं, है ना सर भाई? तुम उछल उछल के बताओगे वहां पे कि मेरे मामा जी बीजेपी के एमपी हैं, कांग्रेस के एमपी हैं, उनको सपना थोड़ी आया जी लिखा हुआ है तुम्हारी कि तुम्हारे मामा जी एमपी हैं, कैसे पता लगेगा उनको? अनलेस एंड अनटिल मैं ना बोलूं तो यार मुंह चुप रखो अपना। ठीक, थैंक यू सर। नेक्स्ट हेलो एसडी। मेरा नाम दिया था मैं एसडी नाम का कोई बालक यहाँ पर है, लाल रंग का उसका गोला लगा हुआ है, फोटो वोटो दिख नहीं रही। एसडी, एसडी कौन है मुझे पता नहीं, पूछ लो भैया, पूछना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ वरना। सामर्थ पाटिल बोलो। सर पूछना है सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। कैसे इंप्रूव की जाए? एसडी बोलिए क्या हेलो। पूछ। हाँ जी बोलिए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि राइटिंग स्किल्स, लिखने का तरीका, एक इंप्रेशन अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस की जाए सर? राइटिंग स्किल अच्छी करने के लिए 1-2 दिन में राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती है, धीरे धीरे होता है। और एक्टर को राइटर बनने की जरूरत नहीं है, एक्टर को एक्टर ही बना रहे उतना ही काफी है। राइटिंग स्किल्स डायरेक्टर के लिए जरूरी होती है, एक्टर के लिए जरूरी नहीं। तो आपके क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर होगा, ठीक है। सर मैं एग्जाम की प्रेजेंटेशन के लिए पूछ रहा हूँ सर। क्या बोल रहे हो आप? एग्जाम के एफटीआई रिटर्न एग्जाम के जो होता है सब्जेक्ट, उसमें उसके writing प्रेजेंटेशन skills के का लिए कोई पूछ मतलब नहीं है। क्वेश्चन का जो आंसर पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा वहां से आंसर दो। मैंने पूछा आपसे टाइम क्या हुआ है, सीधा मैंने आपसे पूछा क्या टाइम हुआ है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 7:52। अब आप मुझे बोलने लग जाएं कि सर आपको चाहिए कि आप एक घड़ी खरीदें, घड़ी जो आजकल 200 रुपए की मिल जाती है और आपको फिर ये लोगों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुमसे पूछता हूँ तो आप बताओ तो 7:52। ठीक है सर, बहुत फालतू की बात नहीं करनी है वहां पे। सामर्थ पाटिल क्विक। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग Sir, I wanted to ask you two general questions. Sir, in FTI or SRFTI, which stream has lowest merit for general category? कौन से कोर्स के लिए?
सर सेलोएस्ट मेरिट कौन से कोर्स के लिए होता है? आप क्या बनना चाहते हैं जिंदगी में? सर एक्टर। एक्टर तो SRFTI में एक्टिंग का कोर्स नहीं है, बात खत्म हो गई, आगे बोलिए। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, एज आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, so this knowledge will help me to get admission in FTI or SRFTI in branch like sound engineering. BCom किया, BSc किया, उससे कोई लेना देना। तो सर साउंड इंजीनियरिंग का कितना रहता है मेरिट? रहता है मतलब क्या? मेरिट सर। मेरिट जो है, देखो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक तो तुम मेहनत नहीं करते हो। मुझे तुम्हारे नाम का बहुत अच्छी तरीके से पता है। मैंने लॉकडाउन के अंदर फिल्म एप्रिसिएशन के लिए सब लोगों को क्वेश्चन भेजता था मैं। आपने कभी 25 ईमेल में या 20 ईमेल में कभी किसी क्वेश्चन का आंसर लिख के नहीं भेजा। मैं नाम पढ़ के याद रखता हूँ बेटा, मेरी मेमोरी है बहुत अच्छी तरीके से। देखियो कभी जिंदगी में तूने किसी भी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भेजता था मैं, तुमने किसी क्वेश्चन का आज तक आंसर लिख के नहीं भेजा। तो पहली चीज तो यह है कि आप मेहनत नहीं करते, पहली चीज। और जो आदमी मेहनत नहीं करता है उसका किसी भी कोर्स में सिलेक्शन नहीं होता। तो अब आप एक्टिंग करना चाहते हैं, कभी आप साउंड रिकॉर्डिस्ट बनना चाह रहे हैं, कभी आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं, तो कैसे हो? आप तो एक्टिंग के पैनल में आए हैं ना, साउंड रिकॉर्डिंग के पैनल में तो नहीं आए। इसका मतलब आप तो एक्टर बनना चाहते हैं। बात कर रहे हो तुम साउंड रिकॉर्डिंग की। तो जिंदगी में क्या करना है, एक सेंटेंस में लिखो। FTI में ना हो तो किसी दूसरी जगह से कोर्स करके बॉम्बे जाओ, कोशिश करो, बन पाओ तो अच्छी बात है। कंफ्यूज लोग कोई भी कोर्स में नहीं जा पाते हैं FTI के। फ्यूचर में ये भी ध्यान रखना, बहुत से लोगों ने 2-2 कोर्स के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पर कोई डायरेक्शन में भी अप्लाई करके बैठा हुआ था और यहाँ एक्टिंग में भी आ गया है। FTI में तुमने 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया, ध्यान रखना एक में भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि कहावत है एक पुरानी कि 2 नाव में पांव नहीं रखे जाते। इसका दूसरा तरीका है कहने का, एक के सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। एक की प्रिपरेशन ठीक से कर लो, आसान कुछ भी नहीं है। ये मत समझना कि उसमें कम मेरिट जाते तो हम घुस जाएंगे, इंटरेस्ट तो तुम्हारा है ही नहीं, तो मेरिट क्या खाक करेगी उसके अंदर? तुम्हारा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, वहां भी फेल हो जाओगे पक्का। लिख के देता हूं मैं स्टाम्प पेपर पे अभी। कितने लोगों के सामने 36 लोग सुन रहे हैं, तुम साउंड रिकॉर्डिंग के पेपर में बैठो, मैं लिख के देता हूं, तुम फेल होने वाले हो। क्यों? क्योंकि तुम कंफ्यूज आदमी, मेहनत तुम करते नहीं हो, मेहनत तुम्हें करनी आती नहीं है और कंफ्यूज हो। एक तो करेला फिर नीम चढ़ा। क्या होने वाला है उस आदमी का? कुछ नहीं। 2 साल हो गए तुम्हें फेल होते हुए, हो गए ना, हो गए हैं, ठीक है। और इस साल भी यही होने वाला है, लिख लो। एक्टिंग के फोरम में आके तुम साउंड रिकॉर्डिंग की मेरिट पूछ रहे हो कि कितनी लो जाती है। मुझे क्या लेन देना साउंड रिकॉर्डिंग की मेरिट से? मुझे तो एक्टर बनना है। एक्टिंग की मेरिट के बारे में बात करो। तो जिंदगी में बेटा डिसाइड करो करना क्या है, और कर पाओगे नहीं कर पाओगे सेकंड क्वेश्चन है, उसका इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग से कोई लेना नहीं। वहां की क्वालिफिकेशन 10+2 विद साइंस है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन है साउंड रिकॉर्डिंग कोर्स के लिए। बट अगर इंटरेस्ट नहीं है साउंड रिकॉर्डिंग में तो होने वाला नहीं है सिलेक्शन, ये ध्यान रखना जिंदगी में। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। यू मे नॉट लाइक इट बट आई सेड इट व्हाट आई फील लाइक। आप प्रूव करके दिखा दीजिए 20 ईमेल में आपने कभी किसी क्वेश्चन का आंसर भेजा हो। आज भेजा होगा शायद आपने, आज भेजा है ना आपने शायद, बट मेरे 20 ईमेल के क्वेश्चन के आंसर आपने कभी जिंदगी में नहीं भेजे। मुझे कोई फर्क नहीं। आज भी 34 लोगों ने भेजा है, 120 लोग रजिस्टर्ड है, यहाँ पर 64 लोग थे। क्वेश्चन ये है कि 34 लोगों ने क्यों नहीं भेजा? इंटरेस्ट नहीं है, बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, कीर्तन चल रहा है यहाँ पे, भजन कीर्तन थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। तो कुछ लोग गा रहे हैं, हम तालियां बजाते रहेंगे हम भी कोरस में कुछ छोटा मोटा गा देंगे। तो मेहनत करनी पड़ती है दोस्त, तब जाके शायद जिंदगी में कुछ होता है। नेहा टार्जन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर, आपने कल डिस्कस किया था कुछ PDF के बारे में कि मुझे क्या आप सेंड करेंगे ग्रुप में, अभी तक आपने सेंड नहीं किया है वो। क्या PDF की मैंने बात की थी, मुझे बताओ थोड़ा सा। FTI एक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ हिंट वगैरह आता आपने, क्योंकि उसमें 5 पेजेस रोज रीड करने हैं। मैं बात नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी, आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। सर आपने कल डिस्कस किया था कि मतलब कुछ PDF के बारे में
कि मुझे मतलब वो रीड करने हैं एफटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए, काफी हेल्पफुल होंगे वो। मैंने कुछ बुक्स की बात की होगी जो बड़े यस सर। बड़े लोग रहे हैं एक्टिंग के अंदर, जिनकी टेक्निक्स मानी जाती है दुनिया के अंदर, यस माइजनर हो या वो स्टेनिस्लावस्की हो। हाँ, तो वो किताबें जो हैं, उससे मैं हाँ समझ गया मैं आपकी बात। अभी वो 10 पीडीएफ जो है, 8-10 पीडीएफ फाइलें हैं, वो बुक्स जो हैं, वो जो सब बच्चों को पढ़नी चाहिए, वो मैं लोड करूंगा। मुझे याद आ गया अभी 2-3 दिन यस का टाइम सर। और है हमारे पास, तो घबराओ मत, मैंने कहा है तो फिर मैं लोड करूंगा, चिंता मत। यस सर, बस यही पूछना। थैंक यू सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन है सर। आकाश क्षितिज शर्मा जी दीक्षित, से। कौन है ये आदमी? आकाश शर्मा, यस सर। बोलिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस वंस यू गेट अ स्क्रिप्ट इन योर हैंड। What happens when? What happens once you get a script in your hand? Script. ठीक है। हाँ, तो उसके बाद था what would you do if you found any dissimilarity between you and the character you are playing? ये पिछले उसका क्वेश्चन था। हाँ जी। तो कल या परसों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोग आए, तो वो तरह इस क्वेश्चन का आंसर ठीक से दे पाएंगे। मैं इसको लिख लेता हूँ कि डिस्क्रिपेंसी वाला जो क्वेश्चन है, ये जो है मैं भी दे सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक्टिंग का आदमी बोलेगा तो ज्यादा अच्छी तरीके से बोलेगा। मैं भी दे सकता हूँ, बट वो एक्टिंग का आदमी से तो बुलवाएंगे हम लोग, दैट विल बी बेटर। ठीक है सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी, सर मैंने फर्स्ट क्लास में पूछा था ये थिएटर और फिल्म्स में डिसिमिलरिटी, वो इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट एंड वॉइस, और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। तो हाउ टू बी स्पेसिफिक इन दिस क्वेश्चन? आपने बोला था कि मैं अगली क्लास में बताऊंगा। हाँ, मैंने जो है कुछ लिखा भी हुआ है, वो मैं आज पढ़ के सुनाना भी चाह रहा था आप लोगों को। वो डिसिमिलरिटीज इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट एंड क्या था वो? एंड मूवमेंट एंड वॉइस। इसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसमें स्पेसिफिक कैसे हो? मूवमेंट एंड वॉइस। यस। मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। थिएटर में क्या होता है कि कोई भी एक्टर जो होता है, उसकी कोई मूवमेंट को लेके ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। कहाँ बैठेगा, कहाँ खड़ा होगा, एक ब्लॉकिंग होती है उसकी ओवरऑल, और वो इतना कॉन्शियस नहीं होता है कि मेरा फेस दिख रहा है अभी या क्या दिख रहा है। तो उसका थोड़ा बहुत मूवमेंट 19-20 इधर उधर चला भी जाता है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सिनेमा में जैसे ही आपका मूवमेंट इधर उधर हुआ, आप फ्रेम से बाहर गए, पहली चीज। तो यू एक्ट फॉर ए वेरी रेस्ट्रिक्टेड फ्रेम एंड इन अदरवाइज यू आर वेरी फ्री। वॉइस का जो चक्कर है, आपको थिएटर में लास्ट का जो आदमी बैठा हुआ है 30 फीट के डिस्टेंस के ऊपर, उसको भी सुनाई देना चाहिए। तो नॉर्मली आप जो है, अगर बड़ा ऑडिटोरियम है तो उसमें थोड़ा लाउड बोलते हैं, और अगर ऑडिटोरियम छोटा है, जैसे भारत रंग ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर बहुमुख नाम का एक ऑडिटोरियम है जो छोटा ऑडिटोरियम, तो बहुमुख में आप फिल्म की तरह एक्टिंग कर रहे होते हैं, जोर जोर से नहीं बोल रहे होते हैं, और वहां पर जो है जो अभिमंच है उसमें 30 फीट का डिस्टेंस है, तो आपको वहां पे लाउड होना पड़ता है। तो बेसिकली वॉल्यूम का फर्क है इन टर्म्स ऑफ द लाउडनेस एंड इन टर्म्स ऑफ द फ्रेमिंग। वहां एक आपका रेस्ट्रिक्टेड फ्रेम है, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, ये जो भी कुछ है, यहाँ पे हमेशा ही लॉन्ग शॉट में चल रहा होता है। हमेशा ही थिएटर में खेल जो है लॉन्ग शॉट में ही चल रहा होता है। अब वो एक टेक्निक होती है कि वो लॉन्ग शॉट को मिड शॉट कैसे बना दे और क्लोज कैसे बना दे। वो एक टेक्निक है थिएटर की कि भाई लाइटिंग का स्पॉट लगा दिया, स्पॉट लगाया तो आपकी सारी अटेंशन उस स्पॉट के ऊपर चलेगी, करेक्ट, बाकी में अंधेरा होगा। तो वो एक टेक्निक है थिएटर की कि कैसे थिएटर में लॉन्ग शॉट को मिड शॉट और मिड को क्लोज कर देते हैं वो लोग, उसका एक टेक्निक है, वो एक टेक्निक है थिएटर की। और यहाँ पर जो है सिनेमा के अंदर लेंस के थ्रू होता है, वहां पर जो है फ्रेमिंग प्रॉपर्टी के थ्रू भी हो सकता है, वहां पर लाइट्स के थ्रू भी हो सकता है, वो अलग टेक्निक है। इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट इज फ्री in terms of the theater, but in cinema it is restricted. Volume, in terms of the overall volume in theater, is high normally. In cinema it is normal until unless you are supposed to shout or cry. This is my answer brief. So got it, but sir ये 10 मार्क्स का था, तो मैं यही कंफ्यूज हो गया कि ये सारी चीजें स्पेसिफाई कैसे करूंगा मैं 10 मार्क्स? हो जाएंगी। मैंने तो आपको एक एक पॉइंट बताया, अभी 2-2 पॉइंट और मिल जाएंगे आपको। ढूंढिए 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट मिल जाएंगे, 6 पॉइंट पे आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। आगे कौन बच्चा? हेलो सर। क्षितिज दीक्षित। यस सर, हेलो। हेलो सर, मेरे को एक चीज पूछनी थी। अभी आपने जैसे बताया था कि वेरिएशंस के बारे में, कि हम एक लाइन को या एक पैरा को कितने तरीके से बोल सकते हैं, तो सर उसके लिए कोई एक्सरसाइज या वॉइस एक्सरसाइजेस कुछ भी सर है? काफी एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए, आपको वो करनी पड़ेंगी। एक्टिंग का टीचर आपको ठीक से बता पाएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको लेके आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। देयर आर एक्सरसाइज, मैं नहीं बता सकता आपको, वो एक्टिंग के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आपको बताएं, होती हैं एक्सरसाइज। ओके सर, ओके। हाँ जी, राहुल सिंह लास्ट। यस सर,
सर मेरा सवाल ये है कि आप बोल रहे थे कि सर अपने जिन लोगों ने पहले दिन आंसर किया था पहले फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन का, उसका सर आप मेल करेंगे, तो अभी तक सर कब करने वाले हैं मेल आप? मैं वो मेल केवल उन्हीं लोगों को करूंगा जिन्होंने आंसर लिख के भेजा था। जी सर, मैंने किया था सर। आपने किया था तो आपको मेल जरूर आएगा, आप वेट करिए। अभी ठीक है यहाँ पर सर। दूसरा सर एक लास्ट सवाल है प्लीज, उसके बाद आप फ्री करेक्ट, बोलिए। जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है राहुल सिंह। जी सर बोलिए। सवाल ये है कि सर मेरा जो इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, लेकिन मैं भी सही। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर अपनी सर ये लिखने का तरीका जो है उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं? फोकस होना पड़ेगा आपको, जो भी बात कहना चाहते हैं उसको कम शब्दों में कैसे कहा जाए उस पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने आपको बोला, जो बात पूछी जा रही है उसको वहां से ही चालू करिए, घुमाने फिराने की कोशिश मत करिए। जी जैसे सर। अभी जितने लोगों ने लिखे हैं आंसर, मैं इसका आंसर जो मैंने आज 5 या 6 पॉइंट आपको बताए हैं, 6 पॉइंट मैं कल आपको, कल या परसों मतलब लिख के जरूर दूंगा। मैं उन्हीं लोगों को दूंगा, मगर मैं दूंगा उन्हीं को जिन्होंने लिख के भेजा है। जिन्होंने नहीं देखा है, जो यहाँ ताली बजाने आ गए हैं, कोई बंदर का तमाशा हो रहा है यहाँ पर, या कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, हम भी जाके वहाँ स्टेडियम में बैठ जाते हैं, उन लोगों को मैं नहीं भेजूंगा। आई एम ए वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन इन दैट वे। मैं मेहनत उसी के साथ करूंगा जो मेहनत करना चाहता है। गलत लिखा, ठीक लिखा, कोई बात नहीं, लिखा, ठीक है। किसी आदमी ने हाथ से लिख के भेज दिया कागज पे, वो नहीं चलेगा। तरीके से वर्ड फाइल में लिख के भेजो। ये भी एक गड़बड़ करते हैं लोग, टेक्स्ट बॉडी के अंदर ही डाल के भेज देते हैं। कुछ लोग वर्ड फाइल के तरीके से भेजते हैं अटैचमेंट की तरह। दैट इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट। सो व्हेन आई एम आस्किंग यू टू सेंड मी एन अटैचमेंट ऑफ ए वर्ड फाइल, मेक श्योर दैट यू डू दैट। सर मेरी इंग्लिश बहुत खराब सर लिखने के मामले में, तो सर उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? बेटा ये कोई इंग्लिश कन्वर्सेशन की क्लास तो नहीं है। फिर भी सर कोई टिप्स? आप कोशिश करिए, थोड़ा कुछ किताबें पढ़िए, एक आधी कोई सिंपल सी ग्रामर वामर की किताब खरीदिए, लोगों के साथ बोलना चालू करिए, गलत ही बोलिए, ऐसे लोगों को बोलिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं बोलना आता, ऐसे लोगों के साथ प्रैक्टिस करिए आप अपना। सो इट विल हैपन। यस सर, थैंक यू सर। इट विल हैपन वंस यू आर डिटरमाइंड, इट विल हैपन। यू हैव टू बी डिटरमाइंड। आप जिस दिन डिटरमाइंड हो जाएंगे उसके 1 साल के अंदर खेल हो जाएगा, बट अगर आप डिटरमाइंड नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जी सर, थैंक यू सर। कल 9th स्टैंडर्ड में आ गई थी, आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो, अब आपको आ रही है, कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। तो आना जरूरी, ठीक है जी सर। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, 1 hour more. Sir, one question, sir. I'm left. Who is left? Rahul Sachdeva. Rahul Sachdeva, बोलिए। So for written part, do we need to elaborate our points as well, like, or just the points will work? देखिए, 2 चीजें हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स। जैसे आज का क्वेश्चन है, मैंने 6 पॉइंट आपको बोले, ठीक है। मैं कल या परसों बहुत जल्दी, मतलब खत्म होने से पहले या खत्म होने के लास्ट डे, जिस दिन मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मैं इसका आंसर आपको लिख के भेजूंगा जो मैंने आज यहाँ पर बोला है। कितने प्रिसीजन के, मैं अभी भी लिख सकता हूँ। मैंने जो बोला वो मेरा बहुत प्रिसाइज है। उसके पॉइंट होगा, उसके नीचे 3 लाइन होगी। पॉइंट का कीवर्ड होगा, जैसे फ्रेमिंग, मैंने बोला लेंसिंग, कीवर्ड क्या है मेरा? लेंसिंग। लेंसिंग के ऊपर 4 लाइन, फिर लेवल, लेवल के ऊपर 3 लाइन, ठीक है। ऐसे कीवर्ड प्लस 3 लाइन, कीवर्ड प्लस 3 लाइन, कीवर्ड प्लस 3 लाइन। Okay, sir. Thank you. Bye bye. Have a nice day.